the TS of all the root, stem and leaf, everything is over. So I hope, you are all clear with the main topics, subtopics of that chapter. If there is any problem, please let me know. ठीक है? तो anatomy तो हो गया है, और आज today we are going to switch over to another chapter. ठीक है? Another chapter which is also very important and which seems to be very lengthy. और जनरली हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स ही लिए हैं, सो दैट जिसको पढ़ने में आपको खुद से आपका इन्फो कम हो जाता है। जब एनाटॉमी की बात आती है तो ऐसा लगता है ना बहुत है, पर ऐसा नहीं है। तो हमने भी पढ़ा है, सो दैट्स व्हाई दिस पीपीटी मोड ऑफ टीचिंग इज नॉट सो मोनोटोनस। अगर आप खुद से पढ़ेंगे, या आप अब इस टाइम पे एनसीईआरटी उठा के अगर आप रीड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। ज्यादा हो जाएगा मतलब रीड तो आपको करना ही था, वो तो आपने कर लिया होगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में जितना जल्दी रिवीजन कर ले उतना अच्छा है। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि 90 क्वेश्चंस आने हैं और कितने सारे चैप्टर्स है, 36 चैप्टर्स हैं। So you have to utilize your time very well. All right. So good morning, everyone. This is Madhumita, and today we are going to start a new chapter, which is plant kingdom, equally important. And नीट में ऐसा मत समझो इससे नहीं आएगा उससे नहीं आएगा. We can't tell you. See, weightage it's not fixed. अगर ऐसा दे तो the competition becomes less. कि अगर आप बता दे आपको इसमें से ज्यादा चैप्टर, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इसमें से कम क्वेश्चन आएगा. हाँ, वेटेज जो हम लोग बताते हैं, that is like past 5 years, past 6 years, what has been the trend. That, but nowhere NTA in their website has written कि भैया इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आएंगे. आप जब आप खोल के देखोगे NTA का वेबसाइट, आजकल तो वहाँ पे पेपर्स हैं where if you go to the website, NTA website, if you go to that, I'll send you the link. I will send it to Krishna sir. He is going to give it to you. या आप सीधे उसके वेबसाइट पे चले जाइए NTA पे, और वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि they have got papers, model papers, and model papers, if you go and see, they have questions all from morphology, anatomy, सब कुछ. और पर वैसा नहीं होता, वहाँ पे जाके आपको obviously suppose उस टॉपिक से कम ही आता है, but you have to do all of them. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ये मत करो वो मत करो. तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा. ठीक है? So 26th May today, and plant kingdom is the topic, and today we are going to complete algae, bryophyta. We'll try to complete bryophyta also. ठीक है? So let's start. देखो, kingdom plantae आपको पता है, it is one of the largest kingdoms. इतने सारे जो plants हैं, algae है, all of them belong to kingdom plantae. Kingdom plantae एक बहुत ही sober, बहुत ही डिसेंट टाइप का किंगडम है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे डेंजरस प्लांट्स भी हैं इसमें, आप देखोगे. ऑलराइट, सो प्लांट्स की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लांट्स के? हाँ, we are going to do strictly as per NCERT. So because I told you NCERT is your Bible, उससे इधर उधर भटकिए मत. वो जो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं जिनके पीछे आप भागना चाहते हैं, बाद में भागिएगा. ठीक है? पहले एनसीईआरटी के पॉइंट्स खत्म कर लेते हैं. सो दे आर मल्टी सेलुलर. अच्छा, मल्टी सेलुलर जब की बात होती है तो यू विल टेल मी कि मैम मल्टी सेलुलर तो एल्गी तो प्लांट है, एल्गी तो यूनिसेलुलर है. हाँ भाई, यूनिसेलुलर भी होता है एक्सेप्ट एल्गी. ओके, एक्सेप्ट एल्गी, यहाँ लिख लो, एक्सेप्ट एल्गी is unicellular. So all multicellular eukaryotic is the keyword. Eukaryotic means having a prominent nucleus. U means true. So eukaryotic means having a prominent nucleus, a true nucleus, as a nucleus is bounded by nuclear membrane, and it has yes, it has got a nucleolus, and the chromosomes are inside. So this is called a true nucleus, जिसमें सब कुछ अंदर है. It's not in the cytoplasm. Genetic material is not in the cytoplasm, and it has got histone proteins. That is a eukaryotic organism, where there is a nuclear membrane, the chromatin material is inside, you have the nucleolus. ठीक है? इसका opposite होता है prokaryote, जो आपने पढ़ा, nucleoid. इसमें क्या होता है? कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कुछ नहीं, बस डीएनए, मास सर्कुलर डीएनए lying free in the cytoplasm. ठीक है? वो हमने इसमें पढ़ा है ना. बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर द टू इम्पोर्टेंट prokaryotic members. All right, so all multicellular eukaryotic plants are placed in kingdom plantae. They are autotrophic. आपको पता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, manufacture their own food by the process of photosynthesis.
And kingdom Plantae has been rightly divided into all these groups: algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. And what is the basis of division that I'm going to tell you. तो यहाँ पे important बात यही है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ये ऑटोट्रोफिक, ठीक है, ऑटोट्रोफिक है, यूकैरियोटिक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यूकैरियोटिक भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, लेट अस जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब आ जाए, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिवीजन? प्लांट किंगडम को क्यों डिवाइड किया गया? व्हाई द प्लांट किंगडम हैज बीन डिवाइडेड? ओके, व्हाट वाज द नीड? इट्स अ ह्यूज किंगडम। छोटे प्लांट्स भी है, बड़े प्लांट्स भी हैं, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स भी हैं, वाटर के पास रहने वाले प्लांट्स भी हैं, एल्गी भी है। तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना डिवीजन का। एंड यू नो, evolution is everything you should study in biology in the light of evolution. मतलब प्लांट्स भी सबसे पहले सब पानी में थे, जैसे एल्गी देखो कैसे इवॉल्व हुआ है, फिशेस एल्गी, वैसे कोरिलेट करो, एल्गी सब पानी में था, सब कुछ उसको पानी में से मिल रहा है, तो एल्गी के पास तो कुछ नहीं होगा, रूट भी नहीं होगा। जब पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करना है तो रूट, इतने बड़े बड़े रूट रख के करेगा क्या वो, ठीक है। खुद तो बेचारा यूनिसेलुलर है, बहुत सारे एल्गीज यूनिसेलुलर है, तो एल्गी पानी में रहता है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं रहेगा, स्लोली स्लोली जैसे जैसे पानी से दूर होगा, मतलब एल्गी होगा, फिर ब्रायोफाइटा होगा, तो उसमें थोड़े टिश्यूज डेवलप होंगे। एज इट अगेन बिकम्स more terrestrial habitat, like you know, habit like you can correlate it with reptiles. तो जैसे अब टेरिडोफाइट बन गया, तो टेरिडोफाइट में और टिश्यूज डेवलप होंगे, जिम्नोस्पर्म्स में और टिश्यू डेवलप होंगे, एंड एंजियोस्पर्म्स इज द मोस्ट, जैसे मैमल है जो डोमिनेट कर रहा है अर्थ को, एंजियोस्पर्म्स आर डोमिनेटिंग द अर्थ, ठीक है। The following points constitute the basis of division: presence or absence of distinct organelles, that I will tell you. Presence or absence of distinct differentiated tissues. Now, just now I spoke, जैसा उसका habitat होगा वैसे उसके tissues होंगे, ठीक है। Angiosperms में भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे यू नो आपको पता चलेगा कि डेजर्ट में रहने वाले प्लांट का क्या अडेप्टेशन है, या यू नो aquatic plants भी हैं उसमें, all right. So differentiated tissues will get differentiated, different के different anatomy है। जैसे डेजर्ट में रहने वाला प्लांट है, a plant which lives in the desert, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के दे दो कि अनाटमी में उसके क्या दो distinguishing features होंगे। A plant which lives in the desert, a plant which lives in the desert. Now see, you can tell me cactus and all that and this that, but anatomically what will be? Long roots, anatomy, thick cuticle, reduced leaves. ये anatomy नहीं है बेटा, reduced leaf तो ऊपर से दिख रहा है, leaves are modified into spines. Thick cuticle, and one more thing that you've missed. Sunken stomata, small नहीं, पूजा रानी, you're right. Small stomata नहीं, sunken stomata. My voice is audible now to everybody? Sunena, correct. Nice name, Sunena. So sunken stomata is one of the, is thick cuticle, जैसे नेरियम होता है ना, नेरियम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, नीट में भी आ चुका है नेरियम का नाम। नेरियम इज a xerophyte, okay, very good। तो देखो डिफरेंशिएशन हुआ ना अलग अलग तरीके से। presence and absence of just a second, आप लोग लिख रहे हैं ना उसमें, presence and absence of seeds हो सकता है, whether the seeds are enclosed in fruits or not। अब सीड है तो सीड क्या फ्रूट के अंदर है कि फ्रूट नहीं है उसमें, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स आर एक्सपोज्ड, ठीक है, the ovule is not covered by ovary। इसमें angiosperms में seeds are covered by fruits, that's why this is an advantage of an angiosperm over gymnosperm। तो ये तो जनरल बातें हो गई। so this is the criteria, this is the basis। तो ये basis है, and इसमें आपको just you have to understand कि differentiated tissues होते हैं, presence and absence of seeds is there, all right। so let's just move to the next slide। okay, everybody can see the slide now? Now see, we are just doing just look at the classification, what the classification says about plants
Now, Kingdom Plantae has been divided into two sub-kingdoms. Kingdom Plantae has been divided into two sub-kingdoms. This is the kingdom. This is the kingdom, and this is the kingdom, and these are the sub-kingdoms. Cryptogam and phanerogam. Cryptogam का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है. क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन. क्रिप्टो मतलब हिडन एंड गैमी मतलब मैरिज. सो इनका जो दिस मीन्स फॉर देम इट मीन्स कि इनका जो रिप्रोडक्शन है ना ये दिखता नहीं है. यू अंडरस्टैंडिंग. And phanerogams, that means इसमें seed नहीं होता. You'll never know how they reproduce. That's called hidden marriage. जिसने पहले दिया था उसने ऐसा नाम दिया था obviously. And phanerogams में they are seed bearing. Phanerogams में they are seed bearing. So everything is visible. Flower is there, then seed is going to be visible and everything. All right. So cryptogams and phanerogams. Cryptogams are seedless. There is no seed. And under this you have these. Now, what are these? Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. इसके अंदर 3 divisions हैं. You know the hierarchy of, I mean the taxonomic hierarchy. You know ना? What is the taxonomic hierarchy? KP, COF, GS. ये आपको पता है ना? KP, COF, GS. Kingdom, phylum. Phylum in case of plants and division in case of animals. Okay, sorry. Phylum in case of animals and division in case of plants. So kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. These are the taxonomic categories, taxonomic hierarchies. So every organism, plant, animal, microbe has to have all these hierarchies. All right. So these are the sub-kingdoms. So sub-kingdom cryptogamy or phanerogamy, and now sub-kingdoms will be further divided into divisions, So these are the divisions. So cryptogam 3 तरीके के हो सकते हैं. Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. And again, phanerogams could be of 2 types, gymnosperms and angiosperms. Okay. Thallophyta, as the name says, देखो phyta का मतलब simple meaning होता है plant. कैसा plant? Having a thallus-like body. Body is not differentiated into roots and leaves. Bryophyta का मतलब होता है a plant which is an amphibian kind of a nature it has. मतलब land पे भी रह सकता है और water पे भी रह सकता है. Pteridophyta is the first vascular cryptogam. सबसे पहले जो land पे आया. I told you ना, evolution में ऐसे ही develop हुआ है. पहले पानी में रहने वाला. देखो, undifferentiated body called thallus. No vascular system. Reproduction could be asexual and sexual. Reproductive cycles are important, by the way. Today I'm going to teach you the reproductive cycle of Chlamydomonas. Bryophyta, no proper root. See, यहाँ पे Bryophyta plant के जैसा लगता है, लेकिन सब कुछ like में लिखना है. जैसे root like, root के बदले rhizoids होगा. Stem like, leaf like. कभी भी directly root, stem, leaf नहीं लिखते हैं. And evolution के process में you know ना कि root नहीं rhizoid होते हैं. ठीक है. Stem like structure होता है, leaf like structure होता है. तो इसमें नो प्रॉपर रूट और शूट सिस्टम, नो वैस्कुलर सिस्टम. इसमें भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं आया है क्योंकि पानी में ही रहने वाला प्लांट, पानी के आसपास ही रहने वाला प्लांट है. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल होता है. टेरिडोफाइटा सबसे पहली बार, इट्स कॉल्ड द वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम. आने वाले स्लाइड्स में आप पढ़ेंगे. इसमें इसमें रूट शूट सबसे पहले आपको दिखेगा. लाइक नहीं बोल रही हूँ, रूट शूट लीफ आपको दिखेगा. ठीक है. वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है बिकॉज इट इज ऑन द लैंड. अब तो इसको पानी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. ठीक है. रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्सुअल एसेक्सुअल. जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आ जाइए. नाउ देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम आर फ्लावरिंग प्लांट्स. इनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग. इसको बोलते हैं फ्लावरिंग. लेकिन फ्लावरिंग में भी 2 तरीके का. देखो, जिम्नोस्पर्म्स डजंट हैव फ्लावर्स. जिम्नोस्पर्म्स के पास फ्लावर्स नहीं होते. जिम्नोस्पर्म्स के पास फ्लावर के बदले क्या होता है? व्हाट डू जिम्नोस्पर्म्स हैव?
instead of flowers. They have cones. They have cones. Yes. They have cones. You can see the slide, everybody. Can you see the slide? Just write on the chat box and send me. इसको slide नहीं दिख रहा है. There's some person who's written slide is not visible. आप अपनी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो. यहाँ से everything is fine. ठीक है. But you listen to my voice. So Kingdom Plante is divided into Kingdom Plante is divided into cryptogams and phanerogams. Cryptogams are again divided into 3 divisions: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. And phanerogams are divided into 2 divisions: Gymnosperms and Angiosperms. और इसके नीचे की बातें इनके इंडिविजुअल क्लासेस, इनके इंडिविजुअल जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तब कर लेते हैं. ठीक है. क्योंकि इसके नीचे है क्लास भी करना है आपको. ऑर्डर नहीं करना पर क्लास करना है. थैलोफाइटा की क्लासेस 3 है, इसके 3 है, आपको करने 2 है, इसके भी 3 है. ठीक है. इसके भी हैं, इसके भी हैं. सो आपको करना, मतलब इसके नीचे इनके क्लासेस है. ये जो क्लास है ना, जैसे एल्गी है, लाइकन तो आपको यू हैव स्टडीड लाइकन्स इन द फर्स्ट चैप्टर. तो एल्गी का क्लासिफिकेशन आपको करना ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स. देन here these are the classifications, but you have to know the names also, ferns, and there are other names also. All right, here also and here also. So this is a basic classification. Now difference between gymnosperms and angiosperms, both are flowering. इनका marriage दिखता है in the form of a flower, इनका नहीं दिखता है, non flowering. So इसमें phanerogams में what happens is that in case of gymnosperms, instead of flowers there will be cones. Cones बहुत tough होते हैं, flower के जैसे नहीं होते हैं, पर flower का उसमें reproductive organs होते हैं, that's why it is called cones. And angiosperms में typical flowers होते हैं जिसमें reproductive organs होते हैं. Unisexual flower हो सकता है, bisexual flower हो सकता है. ठीक है? Clear? Let us study algae. I am going to give you the notes on algae. I will send the notes. जो आपको learn करना है, that I am going to send you today just after the class, and some questions also that you have to solve. So let us study about algae. Now, the study of algae. हाँ, मिल जाएगा. You will get I will send you a very good short notes जिसमें सब कुछ लिखा है और उसी में से question आएगा. बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको. अब algae के बारे में बात करते हैं. Phycology is the study of algae. Algae के बारे में कुछ important बातें. सबसे पहला, algae is surrounded by, algae is a plant, so it is going to have a cell wall. Cell wall will be made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. So algal cell wall is made up of cellulose. ये देखो, and it has got a mucilaginous sheath. And cell wall is made up of cellulose primarily. ये सारे substances आप देख सकते हैं. Algae is haploid. What do you mean by haploid? Haploid means N होता है वो N. मतलब algae अपनी लाइफ में diploid बस एक बार होता है, when it is forming a zygote. Half the number of chromosomes. Okay. So algae अगर haploid है तो एक बात बताओ, उसमें gamete formation कैसे होगा? ये क्वेश्चन है. कोई भी अगर haploid है, क्योंकि gametes haploid होते हैं, समझ रहे हो? तो algae में फिर primarily कौन सा division होगा? Mitosis. क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा क्योंकि n/2 नहीं होता. गेमेटोफिटिक 2 जनरेशंस होते हैं, गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक. तो इसमें प्राइमरीली गेमेटोफिटिक जनरेशन होगा. प्लांट का वो जनरेशन which bears gametes is called gametophytic. तो algae gametophytic है. ऑटोट्रोफिक है, अपना खाना खुद बनाती है. नॉन वैस्कुलर, नो जाइलम फ्लोएम aquatic cryptogams अभी पढ़ा ना. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. They are primary producers in the food chain. You know what primary producer means. What do you mean by a primary producer? 90% of the photosynthesis is done by
90% of the photosynthesis is done by algae in the oceans. This is a question. 90% of the photosynthesis is done by algae in the ocean, and 50% of carbon dioxide fixation on Earth is carried by algae. तो कितना प्रोडक्टिव है algae, देखो आप, ठीक है. 50% of the carbon dioxide fixation on the earth is carried by algae. So they are primary producers in the food chain. Producer मतलब जो photosynthesis करते हैं. They have got a thallus-like structure because thallophyta के अंदर आता है. Sex organs are unicellular and jacketed. This is very important. अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे देखोगे ब्रायोफाइटा में जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. इसमें यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स. व्हाई यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स? बिकॉज द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. बिकॉज द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. प्लांट बॉडी तो हैप्लॉइड है ना, तो सेक्स ऑर्गन्स भी यूनिसेलुलर होंगे. नॉन जैकेटेड, उसमें कोई जैकेट नहीं होता, कोई कवरिंग नहीं होती, ठीक है. एंड दे आर फोटोऑटोट्रॉफिक. तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है एल्गी के लिए? व्हाट things you have to remember? उसमें mucilaginous sheath होती है so that it is protected from water, excess water. Cellulose का cell wall होता है, it's haploid, gametophyte, non-vascular, cryptogam, and it's got a thalloid structure because it comes under thallophyta, and unicellular, non-jacketed sex organs. So these are the important points in this slide. Thalloid means thallus-like structure. You can't see root stems and leaves in the algae ना. Root stem leaf तो नहीं देखते हो ना. algae कैसा ऐसा flattened structure होता है, leaf like ऐसे. देखो एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं आपको समझाती हूँ. एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जो जहां रहता है ना वो वहीं के हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाता है. अब प्लांट जो पानी में, algae is a plant, it is living in water, ठीक है. अब वो एलिफेंट के जैसा इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है, यूकलिप्टस के जैसा उतना लंबा तो नहीं हो सकता. तो वो क्या करेगा, कैसे अपने आप को डिवाइड करेगा? वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा. इसलिए एल्गी का थैलस होता है. जितना एडवांस्ड एल्गी होता है उतना स्प्रेड होता है. जैसे ब्राउन एल्गी आप देखेंगे ना, सरगैसम, लैमिनेरिया, इनकी तो किसी की तो 100 मीटर्स तक लेंथ होती है. कैल्प्स बोलते हैं उसको. 100 मीटर्स तक लेंथ होती है. वो दे आर वेरी डेंजरस फॉर द शिप इंडस्ट्री. उनके जो रोटर्स होते हैं उसमें फंस जाते हैं वो, उनका मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. तो ये लोग कैसे ऐसे नहीं बढ़ सकते, लेंथ वाइज नहीं बढ़ सकते, कि ऐसे बढ़ जा रहे, क्योंकि उनको रहना पानी में है, पानी से न्यूट्रिशन लेना. ऐसे ऊपर नहीं जाएंगे. ऊपर अगर जाएंगे तो उनको जाइलम फ्लोएम की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है. तो जो जहां रहता है वो वैसे ही डेवलप करता है. नेचर ने ऐसे ही बनाया. दिस इज कॉल्ड नेचर सिलेक्शन. तो वो ऐसे फैल जाता है पानी में, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. थैलस का मतलब होता है यू कैन नॉट सी, द प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. इट हैज गॉट अ थैलस flattened body. Understood the meaning of thallus? So thallophyta के अंदर algae आएगा, ब्रायोफाइट नहीं. ब्रायोफाइट एक अलग डिवीजन है. थैलोफाइटा के अंदर algae आएगा. पहले फंगाई को भी डालते थे, बट नाउ फंगाई इज अ डिफरेंट किंगडम ओनली. So thallophyta, bryophyta, pteridophyta, these are 3 important divisions. ऐसा मत कंफ्यूज करना कि जो मॉसेस है वो भी थैलोफाइटा. नहीं, थैलोफाइटा में algae है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्लाइड. Look at this. ये आप पहचान लोगे तो मैं मान जाऊंगी. चलो फटाफट आइडेंटिफाई करो. These are 2 unicellular algae. Very important. Come on, identify them fast. Wrong. इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करो. Identify the picture fast. So much time you're taking. कौन सी एल्गी है ये? यूनिसेलुलर एल्गी है ना, बट कौन सी है? बोथ आर ग्रीन एल्गी. दोनों ग्रीन है ना. डायटम एल्गी है.
प्रोटिस्टा में आता है बेटा डायटम। नहीं, आप लोग एल्गी नहीं पहचानते हो। दिस इज एसिटाब्यूलेरिया, दिस इज एसिटाब्यूलेरिया, एसिटाब्यूलेरिया। ग्रीन एल्गी है, ग्रीन से ही लिखोगे। इसकी लेंथ ज्यादा होती है। और ये क्या है? दिस इज क्लोरेला, दिस इज एसिटाब्यूलेरिया, दिस इज क्लोरेला। ये जो दिख रहा है ना आपको चक्कर के जैसा गोल गोल, ये सब यूनिसेलुलर है, मैग्निफाइड व्यू है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्ट्रक्चर है। तो दिस इज एसिटाब्यूलेरिया। एल्गीज में इनफैक्ट प्लांट्स में इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। एंड इसका है ना ये जो ये चीजें है ना सर्कुलर थिंग्स, अगर इसको कट कर दो, टिप पे रहता है ये, कट कर दो ना तो फिर से हो जाएगा ये। क्लोरेला, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, नॉन मोटाइल। ये लोग नॉन मोटाइल है, मूव नहीं करते हैं, देखो। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल। एग्जांपल इज एसिटाब्यूलेरिया एंड क्लोरेला। क्लोरेला का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहां पर है? एसिटाब्यूलेरिया को तो बहुत सारे जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। क्लोरेला क्या, क्लोरेला का यूज बता दो आप मुझे, माइक्रोब चैप्टर में है। इज इट ओके? आई जस्ट फिक्स इट। अभी ठीक आ रही है मेरी वॉइस? यू कैन हियर माई वॉइस प्रॉपरली? दिवेश, can you hear my voice properly? No, no. Yes, yes. Who is this? Vaishali Tomar. Excellent. Food supplement by Space Travels, and it is very good, very good. And it is popularly called as SCP, single cell protein. अरे स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट क्लोरेला के कैप्सूल्स लेते हैं ना। एक क्लोरेला का कैप्सूल इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन ऑफ द डे। वहां थोड़ी ना खाना बनाने लग जाओगे, कोई ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहां पे एससीपी लेते हैं, आप भी ले सकते हैं एससीपी। ठीक है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। चलो अब आ जाइए, करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ये तो आपका जाना पहचाना है भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये तो आपको पता है। पिगमेंट्स के बेसिस पे एल्गी को तीन तरीके में बांट दिया गया है। क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी, फायोफाइटा या फायोफाइसी, रोडोफाइटा या रोडोफाइसी। इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? ग्रीन पिगमेंट है। दिस इज ग्रीन एल्गी, दिस इज ब्राउन एल्गी, दिस इज रेड एल्गी। ऑब्वियसली इसमें ग्रीन पिगमेंट है। देखो क्लोरोफिल सब में होगा, क्लोरोफिल सब में होगा, यू नो दैट। बट एडिशनली जैसे ये ब्राउन कलर इसमें कैसे आया, ये रेड कलर इसमें कैसे आया, क्विकली चलो बात कर लेते फटाफट, बिकॉज ये रिविजन है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए बी, इसमें क्लोरोफिल ए। ब्राउन एल्गी में क्या होगा? क्लोरोफिल ए बी होगा कि नहीं होगा? बी होगा कि नहीं होगा? हाँ, chlorophyll A, C, and there is a brownish pigment called fucoxanthine. There's a brownish pigment called, very good, brownish pigment called fucoxanthine. Yes, आने वाले slides में everything is written. Rhodophyta, red pigment, phycoerythrin, phycoerythrin. So इसमें chlorophyll A है, D है, तो इसमें chlorophyll ए बी, इसमें क्लोरोफिल ए सी, इसमें क्लोरोफिल ए डी, और इसमें ब्राउन पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथीन। जैंथोफिल पता है ना, सब क्लोरोफिल के ही डेरिवेटिव्स है। फ्यूकोजैंथीन, और इसमें होगा फाइकोइरेथ्रिन। So on the basis of pigments, algae is divided into 3 classes. ये देखो, ये याद आया, ये क्या है? ये क्या है? ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये हमारे एनसीईआरटी का बहुत ही पॉपुलर डायग्राम है। डायग्राम के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लूंगी मैं 5 मिनट्स का। जितने भी बता रही हूँ बस ध्यान से देखते जाओ। यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये देखो, ये कैसी एल्गी है? दिस इज, ये एल्गी कॉलोनी में रहती है। देखो कितने अच्छे से इसकी कॉलोनी डिवाइडेड है, देख रहे हो? एकदम एक फिक्स नंबर ऑफ सेल्स है, दिस इज वॉलवॉक्स। ये ग्रीन एल्गी है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गी।
और इसके कॉलोनी को कहते हैं कौन सी कॉलोनी? सिनोबियम। Synobium. When the number of cells in the colony are fixed, it is called synobium. ये देखो डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। वॉलवॉक्स, बॉल के जैसा लगता है, ये है क्लेमाइडोमोनास। दिस इज ऑल्सो अ ग्रीन एल्गी। और ये देखो, एवरीबडी लुक एट दिस, दिस इज कारा। कारा इज अ ब्रांच्ड एल्गी। देखो कारा, कारा एक ब्रांच्ड एल्गी है, देख रहे हो? ये एक एडवांस्ड एल्गी है। एल्गी ग्रुप में सबसे एडवांस्ड इज कारा, सबसे एडवांस। पहचानने की कोशिश करो, दिस इज कारा, दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम, सेम टू सेम। सो वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा। वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा। कारा की खास बातें बताऊंगी, इसका मेल फीमेल ऑर्गन्स पूछते हैं, ठीक है? वी विल डिस्कस दिस। नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में देखो, अच्छा ब्राउन एल्गी की खास बातें देखो, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, इसमें तो पूरा थैलस लाइक है, लेकिन कारा इज द मोस्ट एडवांस्ड मेंबर ऑफ दिस the green algae, the chlorophyceae. Cara is most advanced। देखो प्लांट जैसा लगने लगता है ये थोड़ा थोड़ा। ब्राउन एल्गी आपको बताया था, ब्राउन एल्गी जो बहुत फैले हुए होते हैं, तो उसमें लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्ट्यूटा। अब पहचानने की कोशिश करो, सपोज ये दे दिया और ये लेबलिंग्स हटा दी, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये देखो, दिस इज लैमिनेरिया। लैमिनेरिया फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। लैमिनेरिया जो है ना, उसका सैलेड बनता है बाहर में, उसको सैलेड के फॉर्म में खाया जाता है लैमिनेरिया को। ऑलराइट, तो चलो इसको देखो। ये लैमिनेरिया है। तो ब्राउन एल्गी में क्या होता है ना, एक होल्ड फास्ट होता है। होल्ड फास्ट होता है, देखो दे आर मरीन एल्गी। ब्राउन एल्गी जनरली मरीन एल्गी, सो उसको नीचे पकड़ के रखने के लिए देयर शुड बी अ होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट ये सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं। स्टॉक होता है स्टाइप, जरूरी नहीं सब में हो, जैसे इसमें स्टाइप नहीं है। स्टॉक होता है स्टाइप, एंड उसके बाद लीफ लाइक स्ट्रक्चर है फ्रॉन्ड। सो होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ड, ये मैं आगे बताऊंगी। दिस इज लैमिनेरिया, पॉपुलरली यूज्ड एज फूड। दिस इज फ्यूकस। फ्यूकस, फ्यूकस, फ्यूकस भी मरीन एल्गी है। फ्यूकस की एक और खास बात है, इसकी लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक है। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, ठीक है? दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। तो उसमें भी होल्ड फास्ट है, फ्रॉन्ड है, लेकिन इसमें स्टाइप नहीं है। और देखो एयर ब्लैडर है, हल्का, अपने आप को हल्का बनाता है ये फ्लोट करने के लिए। एंड दिस इज डिक्ट्योटा, ट्री के जैसा ब्रांच टाइप है, फ्रॉन्ड्स हैं, ठीक है? इसमें होल्ड फास्ट नहीं है। नेक्स्ट इज रेड एल्गी। नेक्स्ट इज रेड एल्गी। रेड एल्गी देखो ऐसे लीफ के जैसा, खाली फ्रॉन्ड है, पोरफायरा। एंड दिस इज पॉलीसाइफोनिया। दिस इज पॉलीसाइफोनिया। क्रिसमस, ये पूरे अच्छे से ट्री के जैसे लगती है पॉलीसाइफोनिया, ठीक है? तो अगर ये सब लेबलिंग हटा दूं, ये सब कुछ हटा दूं, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देम। ऐसा मत करना हाई फाई पढ़ के। नहीं, कारा की मैं वही बता रही हूँ ना, कारा इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रीन एल्गी। कारा इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रीन एल्गी। और कारा के बारे में बहुत कुछ बातें हैं, जैसे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी थोड़े बहुत ही एडवांस्ड होते हैं, है ना? और कारा में एक चीज और है, उसके यूनिस ऑर्गन्स जैकेटेड भी हैं। सो ऑल दिस आई एम गोइंग टू टेल यू। पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर ले, उसके बाद तो करते ही रहेंगे। ग्रीन एल्गी नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू होगा, जो थोड़ा जो एक्सेप्शनल केसेस है, बिकॉज वन डे आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू विद ऑल दीस थिंग्स। वॉइस इज नॉट ऑडिबल? Everybody cannot hear me? I think there's some connection error maybe. Am I audible now? Other students, please check your internet connection also, because if other people can hear me, then there is some problem from your side maybe. आगे बढ़े। अब देखो, रिप्रोडक्शन करने से पहले, रिप्रोडक्शन तो बताऊंगी, सबसे पहले ग्रीन एल्गी का देख लेते हैं। ग्रीन एल्गी का देखते हैं। Green algae are ancestors of higher plants because they have got that same chlorophyll A and chlorophyll B. It could be unicellular हो सकता है, motile, unicellular, motile, non-motile also. एसिटाब्यूलेरिया, ये देखो एसिटाब्यूलेरिया, अभी बताया था ना अम्ब्रेला प्लांट।
It is the largest unicellular plant with a diameter of 10 centimeters. I told you this, I showed you this. So unicellular हो सकता है, unicellular में मोटाइल हो सकता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास. नॉन मोटाइल होगा तो एसिटाब्यूलेरिया एंड क्लोरेला. ओके, फिर ये आ जाओ कोलोनियल. कोलोनियल कॉलोनी में रह सकता, अभी बताया ना, वॉलवॉक्स. और वॉलवॉक्स की कॉलोनी मोटाइल होती है, पूरा बॉल मूव करता है. कॉलोनी विद अ फिक्स नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सिनोबियम. जिसके जिसके डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना. ठीक है, क्लियर? दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू? नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा या पॉन्ड सिल्क. देखो क्लासिफिकेशन ऐसा है इसका. और मल्टीसेलुलर थैलॉइड भी हो सकता है, पेरेन्काइमाइटस, जैसे अल्वा. अल्वा इज आल्सो पॉपुलरली कॉल्ड सी लेट्यूस. दिस इज आल्सो यूज्ड एज फूड. एल्गी की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर वाइज यू नो हाउ इट इज. जैसे एल्गी लिखो, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है. मल्टीसेलुलर में वो अलग अलग तरीके का होगा, वो फिलामेंटस होगा. फिलामेंटस होगा तो कारा. अब फिलामेंटस में भी दो तरीके का होगा, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड. मल्टीसेलुलर में फिलामेंटस कोलोनियल भी तो आ सकता है, साइफोनस, पेरेन्काइमाइटस सब आएगा. सो अनब्रांच्ड में क्या होगा? अनब्रांच्ड के एग्जांपल्स होंगे स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स. स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स. और ब्रांच्ड में ये सब जो अभी आपको बताया, पॉलीसाइफोनिया और ये सब जितने ब्रांच्ड हैं. कोलोनियल में वॉलवॉक्स होगा, पेरेन्काइमाइटस में अल्वा होगा. ऑलराइट, तो ये वाला यहाँ पे लिख देती हूँ. फिलामेंटस हो गया, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड दैट यू फॉलोड. तो मल्टीसेलुलर एल्गी जो होगी ना, वो अलग अलग तरीके की हो सकती है. इट कुड बी फिलामेंटस, it could be colonial, it could be पेरेन्काइमाइटस. और पूरा ट्री लाइक भी होता है, साइफोनस बोलते हैं उसको, पॉलीसाइफोनिया. फिलामेंटस में स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स. कोलोनियल में वॉलवॉक्स. पेरेन्काइमाइटस में मतलब पूरा ऐसे पत्ते की तरह अल्वा. इवन पोरफायरा. समझ में आया? क्लोरोफिल ए एंड बी आपको पता है. कैरोटीन भी होता है, बीटा कैरोटीन भी होता है, ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं. बट प्राइमरली the pigments are chlorophyll A and chlorophyll B. And what is the reserve food? The reserve food is starch. The reserve food is starch. That's why it resembles plants. स्टार्च क्या है? स्टार्च का फॉर्मूला क्या है? कोई बताएगा? और प्लांट क्यों स्टार्च बनाता है या एल्गी क्यों स्टार्च बनाता है? मैं आपके पास ही हूँ, पीछे नहीं जा रही हूँ. 1 मिनट. अंशुमन, एकदम आपके सामने ही हूँ. ठीक है, एकदम स्टेशनरी हूँ. आई एम नॉट मूविंग. आई एम बिहेविंग लाइक अ नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म. हाँ, प्लांट, कोई भी प्लांट है वो फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, और उसके बाद फूड ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. Starch is nothing but when you remove water molecules from glucose, it forms starch. But starch is a complex polysaccharide. It is not reactive, and दूसरा, it occupies less space. Compressed structure होता है उसका. Now my voice is clear? वॉइस का बता दो आप पहले एक बार, अंशुमन. ओके,
So can you see this diagram now? What is this? कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स बताया तो कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स सिनोबियम कॉलोनी है, उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स हैं, अनमोटाइल है वो। ये देखो ये क्या है, दिस इज क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखो कैसा है। यू कैन गेट द लेबलिंग ऑफ द क्लेमाइडोमोनास बिकॉज इट इज शोन इन द डायग्राम, शोन इन योर एनसीईआरटी। हाँ, क्लेमाइडोमोनास को देखो, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कप शेप्ड है। एडिशनली ये पायरेनॉइड है, पायरेनॉइड में बीच में प्रोटीन होता है और स्टार्च की शीथ होती है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, आई स्पॉट है, इसको रेड कलर से वो सेंसिटिव दिखाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है। एंड देयर आर टू फ्लैजेलास, फ्लैजेलास आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसको बोलते हैं आइसोकॉन्ट फ्लैजेला। लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज स्पाइरोगायरा और पॉन्ड सिल्क, स्पाइरोगायरा और पॉन्ड सिल्क या पॉन्ड स्पम। किस तरीके का क्लोरोप्लास्ट है, कैसा क्लोरोप्लास्ट है? व्हाट काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिस इज? रेटिकुलेट। ये किस तरीके का है? zigzag, zigzag, zigzag chloroplast. Spiral, that's why the name Spirogyra. Very good. सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, पायरेनॉइड है, बीच में स्टार्च शीट और बीच में प्रोटीन और चारों तरफ स्टार्च शीट है। इट स्टोर्स स्टार्च। ठीक है, सो दिस इज स्पाइरोगायरा। ओके, सो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर की बात हो गई, ग्रीन एल्गी की पिगमेंट्स की बात हो गई, ग्रीन एल्गी के रिजर्व फूड की बात हो गई। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। Now there are three ways in which reproduction can take place. Reproduction can take place by vegetative method, asexual method, and sexual reproduction also. So vegetative method तो दो है, binary fission and fragmentation. ठीक है, ये सब फेवरेबल कंडीशन में होता है, याद रखना। ये बहुत सिंपल लगता है बट यू मेक इट कंफ्यूज्ड इन द एमसीक्यूज। तो बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन है और फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। स्पाइरोगायरा में बहुत कॉमन है। ऑल फिलामेंटस एल्गी, जितने भी फिलामेंटस एल्गी है ना उसमें फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है, जिसमें उनका फिलामेंट, जैसे ये स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है, ठीक है, ये टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में एंड ईच पार्ट इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द होल algae. So this is fragmentation. This takes place during favorable conditions. So ऐसा नहीं है कि स्पाइरोगायरा सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से ही डिवाइड करता है, डिपेंड करता है, उसमें कॉन्जुगेशन भी होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल का मतलब होता है विदाउट गेमीट्स, लेकिन इसमें होता है बाय स्पोर्स। ये स्पोर्स एसेक्सुअल हैं, ये मियोसिस से नहीं माइटोसिस से बने हैं, ये मियोसिस से नहीं माइटोसिस से बने हैं, बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। उसमें सबसे पहला है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स दो तरीके के हैं, फेवरेबल कंडीशन में, नॉन फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में ज़ूस्पोर्स बनते हैं, unfavorable condition में there are three kinds of spores which are formed: aplanospores, hypnospores, echinites. देखो, favorable condition and unfavorable condition. Now what is the difference between these three? What is the difference between these three? आपको पता है aplanospore, hypnospore और echinites में क्या difference होता है? देखो, ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स बनता है फेवरेबल कंडीशन में। तो सबसे पहले जब रिप्रोडक्शन होना शुरू होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट हैपेंस, the algae like Chlamydomonas, if you take an example of Chlamydomonas, जैसे ये Chlamydomonas है, तो इसको जब रिप्रोड्यूस करना रहेगा, so first it is going to lose its flagella. फ्लैजेला अपना लूज करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लूज करता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा।
और इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट है. Then प्रोटोप्लास्ट is going to undergo mitotic divisions. 2, 4 ऐसे mitotic divisions होगा. And प्रोटोप्लास्ट अंदर is going to divide into daughter प्रोटोप्लास्ट. ठीक है. और उसके बाद the cell wall will rupture and उसमें से रिलीज होंगे छोटे छोटे zoospores. So पहले ये अपना प्रोटोप्लाज्म अपना फ्लैजेला विड्रॉ करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विड्रॉ करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा सर्कुलर. फिर उसमें 2-4 माइटोटिक डिविजन्स होंगे, उसमें डॉटर सेल्स बन जाएंगे. मतलब हु इज डिवाइडिंग? द प्रोटोप्लास्ट इज डिवाइडिंग. एंड देन व्हाट हैपेंस? द सेल वॉल रप्चर्स एंड दीज ज़ूस्पोर्स आर रिलीज्ड. ठीक है, ये तो हुआ ज़ूस्पोर्स. ये होता है फेवरेबल कंडीशन में, and they are motile. अनफेवरेबल कंडीशंस में कौन कौन से तरह के स्पोर्स बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशंस में कौन कौन से तरह के स्पोर्स बनते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, देन व्हाट हैपेंस? यू हैव अगेन यही सेम चीज होता है. सपोज आप क्लेमाइडोमोनास की एग्जांपल ले लो. ये क्लेमाइडोमोनास का सेल है. ठीक है, इसने पहले अपना प्रोटो फ्लैजेला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विड्रॉ कर लिया. जनरली कम माइटोसिस होता है इसमें, और डॉटर प्रोटोप्लास्ट हैज डिवाइडेड बाय माइटोसिस. ये क्या करता है? दिस इज नॉन मोटाइल ना, ये नॉन मोटाइल होता है. तो इसमें देयर आर डिफरेंट काइंड्स. जैसे अगर इसी में ये ऐसे ही रहते हैं, इसमें अगर नाउ डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज फॉर्म, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जैसे पहले वाले में अगर थिन वॉल्ड कवरिंग बन जाए, थिन वॉल की कवरिंग मतलब वॉल के बाहर एक थिन कवरिंग बन जाए, तब इसको बोलेंगे ए प्लानोस्पोर. ठीक है, ए प्लानोस्पोर. समझ में आया? ए प्लानोस्पोर. नेक्स्ट इज इसी सेम स्ट्रक्चर के अराउंड अगर थिक कवरिंग बन जाए विदाउट एनी कलर, और इसकी कलर नहीं ऐसी वो ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस दिखे, सो दिस इज एकाइनेट. और एकाइनेट हमेशा चेन में बनता है. और अगर उसके चारों तरफ एक थिक लाइनिंग बन जाए और रेड कलर, हिमेटोक्रोम बोलते हैं उस पिगमेंट को, ये देखो रेड कलर से दिखा रही हूं, तब ये हिप्नोस्पोर कहलाता है. समझ में आया? कभी कभी क्या होता है, नॉट सो फेवरेबल कंडीशन होता है, उसमें ये जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट होता है, दिस गेट्स इनक्लोज्ड इन म्यूसिलेज. जैसे इसके चारों तरफ अगर एक म्यूसिलेज की लेयर आ जाए, मतलब इंडिविजुअल डॉटर सेल्स के चारों तरफ भी और पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ भी म्यूसिलेज की लेयर आ जाए, उसको कहते हैं पामेला स्पोर. So let us just now write what these mean. देखो, this is, they are formed during unfavorable conditions. So during unfavorable conditions, 3 kinds of spores are formed. Look at this. The same steps take place. First of all, the Chlamydomonas withdraws its flagella and contractile vacuole becomes circular. The protoplast undergoes mitotic divisions to form daughter protoplast. They are inside. अभी ये रप्चर नहीं होता है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है ना, ये नॉन मोटाइल है, ये ऐसे ही रहेगा थोड़ी देर के लिए. अगर इसने अपने चारों तरफ एक थिन वॉल डेवलप किया, तो ये रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? ए प्लानोस्पोर. देखो, ए प्लानो मतलब मूव करता है, इसको प्लानोस्पोर बोलते हैं. ए प्लानोस्पोर. अगर थिक वॉल डेवलप किया लेकिन कलर्ड नहीं है, देन दिस इज एकाइनेट.
और अगर थिक वॉल डेवलप किया विद रेडिश पिगमेंट कॉल्ड हेमाटोक्रोम तो इसको बोलेंगे हिप्नोस्पोर। और अगर एक म्यूसिलेज की लेयर डेवलप कर ली तो इसको कहेंगे पार्मेलास्पोर। या पार्मेलॉइड। ठीक है, so you understood favorable conditions, unfavorable conditions, motile, non-motile, thin wall, aplanospore, thick wall, non-colored, akinete in chains, thick wall colored hypnospore, and surrounded by a mucilaginous layer is pamelospore. Is this clear to you? लिख के भेजो चैट बॉक्स में। ऑल क्लियर? तो आप कंफ्यूज नहीं होगे ना, ए प्लानोस्पोर में, ए काइनेट में आपको स्टेटमेंट्स देके कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, होता है ना माइटोसिस, लेकिन ये बहुत देर तक ऐसे रहेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा ना, अब याद रखना कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये ना वॉल रप्चर हो जाएगी इनकी धीरे से, और ये काफी टाइम लगता है इसको होने में, और तब ये धीरे से डेवलप करके फ्लैजिला अपना डेवलप करके फिर शुरू हो जाएगी अपना काम। ठीक है, क्लियर? सब में ऐसे ही होता है, बट प्राइमरीली मैं आपको क्लेमाइडोमोनास का पढ़ा रही हूँ, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास आपके सिलेबस में, जैसे ये सारे स्टेजेस आप देखोगे कि क्लेमाइडोमोनास में तो तीनों तरीके का वो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, आइसोगैमस, oogamous, एंड आइसोगैमस। ठीक है, तो अभी उसमें बढ़ते हैं आगे। सो ज़ूस्पोर्स, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, एप्लानोस्पोर्स, एकाइनिड्स, हिप्नोस्पोर्स, और ये पामेला है ना, नॉट सो फेवरेबल, पूरी तरह से अनफेवरेबल नहीं, नॉट सो फेवरेबल। चलो इरेज करो इसको। शैल वी मूव टू द पीपीटी? तो ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाओ अब। ये these things you already know, unicellular and jacketless except Cara. Please make a note of this everybody. कारा के मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स, कारा के सेक्स ऑर्गन्स, they are multicellular and jacketed. Very important. Male sex organ of Cara is called globule. Female sex organ is called nocule. In the next class, I'm going to tell you to identify all this. फीमेल ऊपर रहता है, मेल नीचे रहता है। कारा याद कर लो, कारा। प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू zygotic meiosis. अच्छा, एक चीज याद रखना, एक चीज बतानी है आपको कि सिंस algae is haplontic, most of the algae are haplontic except the few exceptions that I'm going to tell you, जैसे फ्यूकस। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक साइकिल मेंटेन करने के लिए, हैप्लॉइड नेचर मेंटेन करने के लिए, जब वो जाइगोट बना ना, जाइगोट बनने के तुरंत बाद, जाइगोट बनने के तुरंत बाद उसमें मियोसिस हो जाता है, इसलिए जाइगोटिक मियोसिस is important and there is no embryo formation. This is also very important. Clear? जाइगोट बनेगा, बस वो उतने से टाइम के लिए ही डिप्लॉयड रहेगा, उसको जाइगोस्पोर बोलते हैं, कि वो थिक वॉल से सराउंडेड हो जाता है। ठीक है, so this is, so the plant body is haploid, so sexual reproduction takes place through zygotic meiosis. जैसे जाइगोट बना उसमें मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस से क्या हो जाएगा, तुरंत 2n से n हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन इन द जाइगोटिक मियोसिस, एंड देयरफॉर एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो तो डिप्लॉयड होता है, एम्ब्रियो बना ही नहीं क्योंकि उसने डिप्लॉयड स्टेज मेंटेन ही नहीं किया। ऑलराइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, आइसोगैमस, anisogamous and oogamous. Isogamous when the gametes are morphologically and physiologically identical. Anisogamous में या तो मॉर्फोलॉजी में फर्क है या तो फिजियोलॉजी में फर्क है। देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ में आ रहा है, दिखने में, स्ट्रक्चर, फ्लैजेला कैसा दिखता है, क्या होता है। फिजियोलॉजी बिहेवियर, एक मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल है, ऐसा। लेकिन इसमें आइसोगेमस में बोथ विल बी सेम। एनाइसोगेमस में
या तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस हो या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो। oogamous में क्या होता है? oogamous में क्या होता है? मेल जो होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल लार्ज होती है और स्टेशनरी होती है। ठीक है, फीमेल लार्ज होती है और स्टेशनरी होती है। अब मेरे को बताओ कि ह्यूमन बींग्स oogamous होगा कि एनाइसोगेमस होगा? चलो, ये आज का क्वेश्चन है आपका। रॉन्ग, हम लोगों को लगता है कि oogamous है, लेकिन oogamous नहीं है। oogamous का मतलब क्या होता है और एनाइसोगेमस का मतलब क्या होता है? ये नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिबेट करेंगे हम 2 मिनट का। चलो, अभी मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करना है। एनाइसोगेमस एंड oogamous। एनाइसोगेमस में क्या होता है? या तो मॉर्फोलॉजी में फर्क आ जाए या तो फिजियोलॉजी में फर्क आ जाए। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। oogamous में क्या होता है? oogamous में टोटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, where male is different, female is different, male is motile, female is motile। लेकिन एक बात याद रखना, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स मोटाइल कौन है? Which gamete is motile in case of human beings? सबने कहा मेल मेल मेल, किसने कहा बोथ? किसने कहा बोथ? Who said both? एक ही स्टूडेंट सही है यहाँ जिसने बोथ कहा। कैसे? देखो, फीमेल गैमीट उड़ के तो नहीं आ गया ना उसमें। देखो, वो खुद मूव नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सीलिया के मूवमेंट से मूव तो कर रहा है ना, तो उसको नॉन मोटाइल नहीं बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। यू नो दैट सेकेंडरी फीमेल का जो आई मीन आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल जो रिलीज करता है, आई मीन जो रप्चर होके ग्राफिन फॉलिकल जो रिलीज करता है, दैट इज सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte जब ओविडक्ट में आता है तो वो मोटाइल ही रहता है ना। देखो, मूव तो कर ही रहा है, स्टेशनरी तो है नहीं, हालांकि उसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, लेकिन उसको मूव कराने वाले सीलिया है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वो उसको धक्का मारते रहते और वो मूव करता है, इसलिए उसको नॉन मोटाइल नहीं कह सकते। तो फिजियोलॉजिकली सेम हुए वो दोनों। इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। लेट मी जस्ट कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ, यस करेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे आप। अब मुझे आपको बताना है लाइफ साइकिल ऑफ। अब एक चीज इसमें नोटिस करो, एक चीज नोटिस किया, हमेशा इंपॉर्टेंट बातें नोटिस किया करो लाइफ में। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, तीनों में क्लमाइडोमोनास है भाई, तीनों में क्लमाइडोमोनास है। ये देखो, क्लमाइडोमोनास छोटा सा है लेकिन कितना रिप्रोडक्शन के मामले में कितना इवॉल्व है, तीनों तरीके का दिखाता है वो। स्पाइरोगायरा में देखो, स्पाइरोगायरा ये करता है, आइसोगेमी करता है, लेकिन एनाइसोगेमी करता है, मैं आप बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। हायर जितने भी एल्गी होते हैं, हायर एल्गी, लेकिन वॉल्वॉक्सिस में वो oogamous है। ये स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स भाई भाई है, जहां जहां ये है ना वहां वहां ये रहता ही रहता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक लास्ट आज का आपको बताना है मेरे को, ये देखो एक लाइफ साइकिल है क्लेमाइडोमोनास का लाइफ साइकिल। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, दो अलग स्ट्रेन के क्लेमाइडोमोनास आए। कैसे आए ये क्लेमाइडोमोनास ने? गेमीट्स कैसे बनाए? जैसे ज़ूस्पोर्स बनाया ना, वैसे ही गेमीट्स बनाया। तो रफली क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं रफली बनाती हूँ। जैसे क्लेमाइडोमोनास रहेगा, आइसोगेमी बता रही हूँ, क्लेमाइडोमोनास रहेगा, वो सबसे पहले अपना फ्लैजेला विड्रॉ करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाएगा, और डॉटर प्रोटोप्लास्ट माइटोसिस से डिवाइड होगा, डिवाइड होके रप्चर होगा। तो इसमें से जो सेल्स निकलेंगे ना, ये ज़ूस्पोर से छोटे छोटे हैं, इनको बोलते हैं गेमीट्स। अब इसमें दो तरीके के स्ट्रेन होते हैं, पॉजिटिव मतलब इसी में से पॉजिटिव, कोई मेल कोई फीमेल, फिर इनका फ्यूजन होगा। ये फ्यूज कैसे करेंगे?
with their anterior ends. इनका anterior ends fuse होगा और ये क्या बन जाएंगे फ्यूज करने के बाद? अच्छा, किस तरीके का फ्यूजन के बाद ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? क्वाड्रीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। दिस इज अ क्वाड्रीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर, 4 फ्लैजिला वाला, फ्यूज करके बना ना, फ्यूज करके बना ना। और ये फिर अपने फ्लैजिला विड्रॉ करेगा और बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट में जब थिक वॉल्ड आएगा तो बनेगा जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोर में हो जाएगा मियोसिस। यहां तो माइटोसिस हो रहा है, यहां हो जाएगा मियोसिस, एक ही बार मियोसिस। दिस इज जाइगोटिक मियोसिस, दिस इज जाइगोटिक मियोसिस, दिस इज जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा? ये फिर मियोसिस होने के बाद ये 4 मियोस्पोर बनाएगा। क्योंकि मियोसिस से बने हैं, एंड दे विल डेवलप इनटू द मीन स्ट्रक्चर, आई मीन क्लेमाइडोमोनास। समझ में आया? तो मेन बात क्या है ध्यान देने लायक? सबसे पहले उसमें माइटोसिस होगा तो गेमीट्स बनेंगे, ये है आइसोगेमीट्स। प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन वाले फ्यूज करेंगे, क्वाड्रीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें वॉल डेवलप होगा तो ये जाइगोस्पोर बनेगा। जाइगोस्पोर में मियोसिस होगा, मियोस्पोर बनेगा, मियोस्पोर जर्मिनेट करके अडल्ट हैप्लॉइड क्लेमाइडोमोनास बनेगा। तो यहाँ पे एक ही थोड़े से यहां तक के लिए, बस यहां तक के लिए, only this stage it is diploid, otherwise it is haploid. So this kind of cycle is called a, नहीं ह्यूमंस एंड आइसोगेमस होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में 2 मिनट्स के लिए। So this is haplontic life cycle, this is haplontic life cycle। ये समझ में आया कि नहीं आपको? ह्यूमंस पे मत घुसो, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने कर लिया है ना, that chapter you've done ना। This is isogamy, haplontic life cycle. Majority of the time it is in the haploid stage, gametophyte stage. Is this clear to you? Is this clear to you? Okay? ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पर जाने से पहले एक बार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लो। क्लोरेला को फूड में यूज करते हैं। स्पाइरुलिना is a blue green algae, so chlorella is also used as space food. Antibiotics, it also gives antibiotics. Space research also it is used. Yes, this is an important question. Cephaloros causes red rust of tea. Some of them also are parasitic. So this remains parasitically on the leaves of tea plant and causes a disease called red rust, Cephaloros. Okay, so with this we will end today, and next class we will begin again. ओके, सो अभी तक जो बताया आपको समझ में आ गया है ना? बस आपको ये सब याद रखना है, रिप्रोडक्शन वाली जो बातें बताई हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल कंटिन्यू, एंड मे बी फॉर दिस चैप्टर आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस आल्सो। आई विल डिस्कस विद सर एंड टेल यू, क्योंकि दिस इज अ वेरी elaborative chapter। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं that I don't want that I should just miss in the lack of time. So I will tell sir, I will take my request sir to give some extra lectures and we will do it. All right? So यहाँ तक समझ में आ गया? कोई problem? All clear? हाँ, टेस्ट टाइमिंग सर आपको भेज देंगे, सेकेंड हाफ में ही है मोस्टली, ठीक है। And I have given 45 questions of botany. They are all easy questions. Easy questions if you study and come. ठीक है, सारे में से दिया, सेकेंडरी ग्रोथ में से है, रूट एनाटमी, स्टेम एनाटमी, लीफ एनाटमी,
सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बेसिक जो चीजें। देखो टेस्ट इज सिंपल बट लैंग्वेज यू हैव टू अंडरस्टैंड। every topic I have given, every सब टॉपिक ऑफ एनाटॉमी आई हैव गिवन क्वेश्चंस, लाइक जनरल टिश्यूज से दिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, रूट एनाटॉमी से दिया है, स्टेम एनाटॉमी से दिया है, लीफ एनाटॉमी से दिया है ना, वो सब जो आपको बताया है फोल्डिंग के लिए क्या हेल्प करता है एंड ऑल दैट। सब कुछ पढ़ के आना, सब कुछ पढ़ के आओगे देन यू विल डू वेल, डोंट वरी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्लास में डायग्राम्स प्रिपेयर करके आना। एल्गी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ लेंगे। Yes, today is the test. Sir is going to tell you, okay? All right? No, not today. I'm going to tell you about the extra class. Which extra class you're talking about? Botany? नहीं, ज़ोस्पोर मोटाइल है। नॉन मोटाइल तो बता दिया आपको, हिप्नोस्पोर, ए प्लानोस्पोर, ए काइनीड, सब है। इसमें आपको स्टेटमेंट्स देके कंफ्यूज करेंगे वो। So clear everybody, no doubts? Till here, all clear algae? And which is the longest algae? Which is the longest algae? Acetabularia, very good. Akshat Dubey. वेरी गुड पायल वर्मा, एसिटाब्यूलेरिया। अब आप पहचान लोगे ना एसिटाब्यूलेरिया को, ऐसे अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर आएंगे उसमें, एक को काटोगे दूसरा भी आ जाता है। So done for the day. You have written the important points. Stay tuned with us. Don't miss any session. And we are here to help you. हाँ, diameter है उसका, ठीक है? So we will end the session for the day and we will meet next class, which is on Thursday. And Thursday we will take a call कि extra class रखनी है कि नहीं रखनी है, ठीक है? All right. So see you next class. Bye everybody. Take care.